لڑائی جھگڑے سیاسی تقریر وغیرہ اس سے ہٹ کے اب وہاں ادبی کام بھی سامنے آ رہے ہیں، اس پر یقیناً ہمارے گروپ کی تمام انتظامیہ اور ایکٹیو ممبران مبارکباد کی مستحق ہے اور میں شکر گزار ہوں۔ بعد میں انجمن مانی کا بھی شکر گزار ہوں، جناب ڈاکٹر احمد صاحب، مدثر احمد صاحب، جناب حاجی ارشاد احمد قادری صاحب، محترمہ شبنم صاحب کہ ان کی بدولت بہت اچھے پروگرام ترقی پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ روایت بھی آگے چلے گی تو یہ آف لائن جو چیزیں ہیں یہ آن لائن بھی پہنچیں گی، اور اگر یہاں 100-150 افراد پروگرام کو دیکھ پا رہے ہیں، آن لائن انشاءاللہ اس کو ہزاروں دیکھ پائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو موجود بھی ہوگی تو بھائی نہیں اس کو 25,000 افراد جو ہیں اس کو اندازہ کر سکیں، تو اس کے حد سے یہ ایک انویسٹمنٹ کو بھیجنا بڑا بڑی بات ہے۔ میں آج کے مہمانان گرامی جناب وزیر کیسے صاحب تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے، جناب صاحب امنا مفتی صاحبہ، غلام صاحب علی صاحب، حضرت آبزان شمع صاحب، خالد نواز صاحب، کیا آپ سب نے میری عزت افزائی کی، اور میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا لیکن آپ لوگوں کے آنے سے بہت حوصلہ ملا، بہت محبت ہے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ چیز مجھے اس کام میں زیادہ محنت اور زیادہ ہمت کرنے کی توفیق دے گی۔ اس کا اشارہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، حسن والے وہ کام کرتے ہیں، لفظ خوش نصیبی ہوئی، خوش نصیبی ختم ہوئی، ان بھر یہ غلام نہ سمجھا، عمر بھر یہ غلام نہ سمجھا، آپ کیسے غلام کرتے ہیں؟ بعد با ملاحظات گھر میں، بعد با ملاحظات گھر میں، اب کبوتر قیام کرتے ہیں، فتویٰ تعبیر پر ہے ابو حضور، فتویٰ تعبیر پر، خواب کو کیوں حرام کرتے ہیں، خواب کو کیوں حرام کرتے ہیں، جام تو توڑ بیٹھے ممبر پر، جام تو توڑ بیٹھے ممبر پر، اب سب کو امام کرتے ہیں، قصہ عشق آگے بڑھ نہ سکا، قصہ عشق آگے بڑھ نہ سکا، وہ میرا احترام، وہ میرا احترام کرتے ہیں۔ شیر دیکھیے گا، 4 خانے بنائے بیٹھا ہے، 4 خانے بنائے بیٹھا ہے، دل تیرا انتظام کرتے ہیں۔ 4 خانے بنائے بیٹھا تو ایک کام کرو، ہم سفر ہو جشن سنیں، انگلیوں سے کبھی کلام کرو، دل کے اندر سے کوئی کہتا ہے تمام رات فقط چاند دیکھتے رہنا، تمام رات فقط چاند دیکھتے رہنا، تمہارا کام کسی دن تمام کر دے گا۔ شعر دیکھیے گا، صنم پہ بڑے لکھتے ہیں مگر مجنون، غلط مجنون کتاب لکھے گا لیلا کے نام کر دے گا، کتاب نام کر دے گا۔ اداس ہو تو غزل اور بھی سناؤں حضور، ہو تو غزل اور بھی سناؤں حضور، جو مسکراؤ تو کیسے اختتام کر دے گا۔ یہ محبتوں کا یہ شاعر آپ کے سامنے، اور انہی کا شعر انہی کی نظر کرتا چلوں کہ نگاہ کیس سے دیکھو، نگاہ کیس سے دیکھو ہمیشہ لیلا کو، صنم کسی کا بھی ہو بے مثال ہوتا ہے،
सनम किसी का भी हो बेमिसाल होता है। तो आज के अब साहिब सदारत हम उनसे सुनते हैं कि वो क्या कैस की लैला के बारे में कहते हैं। इल्म अदब का बहुत बड़ा नाम, सदारती अवार्ड याफ्ता, शेर अदब का बहुत बड़ा नाम, मुहक्किक दानिश्वर नकाद जनाब नज़ीर कैसर। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात तो ये है और खुशियाँ तकसीम करना, ये सबसे बड़ा मुक़द्दस और इबादत है। शहजाद कैस खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और मेरी मिसेज ने मैसेज पढ़ा तो कहने लगी कि लोग समझेंगे कि वो आपके बेटे हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगी शहजाद कैसर। तो मैंने कहा कि वो कैसर नहीं कैस है। तो कैस और कैसर में वैसे थोड़ा सा फर्क होता है। और मैं जब से उनसे मिला हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगा है कि वो मेरी तरह शर्मीले और कुछ मीठे मीठे से और धीमे लहजे की शख्सियत है। तो ये जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, लैला जो है ये मोहब्बत का पैगाम है। कैस और लैला मोहब्बत की अलामत और गुलाब के फूल तकसीम होने कम हो गए हैं। तो इस मौसम में लैला का जिक्र करना, हमेशा कहता हूँ, एक मेरा मकूला है कि दुख इस बात का नहीं कि हम मर जाते हैं। दुख इस बात का नहीं कि हम मर जाते हैं। दुख इस बात का है, दुख इस बात का नहीं कि हम मर जाते हैं। दुख इस बात का है कि हम मोहब्बत किए बगैर ना भी हो तो कर लेनी चाहिए। कि छोटी छोटी चीज़ें भी, आप चाय बनाना चाहते हैं तो आपको देखना होता है कि वो स्टीम वाली चाय है कि मिक्स चाय है या साथ ही डालनी है। तो इतना छोटा सा काम भी आपको सीखना पड़ता है। तो मोहब्बत जितना बड़ा काम आप सोचते हैं कि वैसे ही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मोहब्बत होती है लेकिन मोहब्बत सीखनी पड़ती है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमने अभी तक मोहब्बत करना नहीं सीखा। तो मैंने अपनी एक किताब में ये भी लिखा था कि ईसार, कुर्बानी, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन अभी तक तो हमने इंसान से गुफ्तगू करना भी नहीं सीखा। और हम खिताब करते हैं, चीख के बोलते हैं। हमारी सारी शायरी खिताब की शायरी है। और जोश साहब के यहाँ तो किताब की इंतहा है। तो अल्लामा ज़ियाउल हसन साहब एक लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भी अगर जन्नत में उर्दू बोली गई तो वो जुबान होगी जो नज़ीर कैसर की शायरी में इस्तेमाल होगी। तो किसी ने सवाल किया कि अगर दोज़ख में उर्दू बोली गई तो वो किसकी जुबान होगी? तो उन्होंने कहा कि जोश मिया बातें गरज। और कोशिश करता जरूर कि जिस तरह लोगों के ज़हन में होता है कि शायद वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाला अवार्ड है, ये उससे हटकर था। अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की भी कहानी सुन लीजिए कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 14 अगस्त को अनाउंस किया जाता है और 23 मार्च को बाकायदा तकरीब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है। हमारे दरमियान मसूद अख्तर साहब बैठे हैं, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। हमारे ये एक बाकायदा तकरीब की जाती है, इतलाहात दी जाती हैं, उसके लिए इस्लामाबाद बुलाया जाता है। तो अफसोस का काम एक ये है कि 13 अगस्त 1916 तक 2016 तक
13 अगस्त 2016 तक खतों किताबत, और इस अक्टूबर फरवरी कम अज कम अदब की हद तक जो है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसके लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर नज़ीर कैसर के जनाब नज़ीर कैसर के साथ होने वाली इस मुसलसल नाइंसाफ़ी का फौरी इज़ाला किया जाएगा। और चूँकि मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, निकाबत कर रहा हूँ, तो मैं जी साबिक़ सदारत की इजाज़त से चंद शायर गज़ल के इजाज़त है सर जी। ये तेरी चाहत संभाल रखी है, तेरी चाहत संभाल रखी है, जहाँ रही ने बवाल रखी है। तेरी चाहत संभाल रखी है, जहाँ रही ने बवाल रखी है। आँख के दायरे में रहते हो, आँख के दायरे में रहते हो, आँख तुम पर कमाल रखी है। आँख के दायरे में रहते हो, आँख तुम पर कमाल रखी है। और धड़ बचाने को हर मुअज़्ज़िज़ ने, धड़ बचाने को हर मुअज़्ज़िज़ ने अपनी पगड़ी उछाल रखी है। धड़ बचाने को हर मुअज़्ज़िज़ ने अपनी पगड़ी उछाल रखी है। और सर्द शामें भुला नहीं सकता, सर्द शामें भुला नहीं सकता, याद में तेरी शाल रखी है। सर्द शामें भुला नहीं सकता, याद में तेरी शाल रखी है। और किस दुआ का असर है ये अबरार, किस दुआ का असर है ये अबरार, हर मुसीबत जो टाल रखी है। किस दुआ का असर है ये अबरार, हर मुसीबत जो टाल रखी है। तेरी चाहत संभाल रखी है, जा रही में वबाल रखी है। बस एक गजल पड़ी है 5 अशआर की, बाकियों के लिए सबक है। जी अब हमारे दरम्यान जो है वो बहुत से शोरा कराम मौजूद हैं। और हमने देखा कि हमारी पंजाबी अदबी संगत के आप जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे और कुछ देर आप गायब रहे, अब दोबारा पर्दा स्क्रीन पर आ चुके हैं। पंजाबी के खूबसूरत शायर अमीन दाब आबी, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपने एहतराम से नोट दें। जनाब अमीन दाब आबी। टुटिया होया है, तू भी मेरे हथों टुटिया होया है, मैं भी मेरी जान सबूता नहीं बचिया। तू भी मेरे हथों टुटिया होया है, मैं भी मेरी जान सबूता नहीं बचिया। जान नहीं सकिया मेरा चेहरा पत्थर है, जान नहीं सकिया मेरा चेहरा पत्थर है, शीशा सी अनजान सबूता नहीं बचिया। ते राती काले बदल अभी बसे थे, कच्चा एक मकान सबूता नहीं बचिया। राती काले बदल अभी बसे थे, कच्चा एक मकान सबूता नहीं बचा। और एक नज़्म दे 2-3 बार मैं पेश करांगा। और ये नज़्म जी मैं मैडम आत्मा आपदा दी नज़र करांगा, जो भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बत नाल सुनते हैं उन्होंने मोहब्बत। रू रचीए नी तेनू मैथों खो नहीं सकते खेड़े, जिस्म रखे ने कौन खेड़े। रू रचीए नी दिल दियां लगियां दिल वाले ही जानन, दीन ईमान इश्क साडा असी हाँ प्रेम पुजारी, ते सच्चे इश्क निखारिया सानू दिल दी मैल उतारी। सारी कालक धो के कीता
रूह दे वेड़े चानन रूह रचिए निकला दो रूहां अज एक निक होइयां जिस्मां मोर ने पहला पाइयां गीत वफा दा छिड़िया रूह के दा फुल ये थे अमीनदार भाभी जो अपने आप खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब हमारे नौजवान शायर नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर बहुत खूबसूरत लिखते हैं जनाब अली रज़ा रज़ी अली रज़ा रज़ी मेरे ख्याल से किसी को राज़ी करने गए बाहर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे दरमियान जो है वो एहसान हैदर साहब मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब नौजवान नस्ल के उभरते हुए शायर जनाब एहसान है। आज भी नहीं जे मैं आसमानी चांद के तारे सुते आज भी नहीं जे मैं आसमानी चांद के तारे सुते बाकी दुनियादार ते मेरे घर दे सारे सुते पहले जी तो ख्वाबा तो ताबीर पछाड़ी जाती है ख्वाबा तो ताबीर पछाड़ी जाती है यानी कि तकदीर पछाड़ी जाती है ख्वाबा तो ताबीर पछाड़ी जाती है यानी कि तकदीर पछाड़ी जाती है फट दिलां दे लख लुकाया लुकदे फट दिलां दे लख लुकाया लुकदे नहीं शीशे विच लकीर पछाड़ी जाती है उथे तिकर कैदो भी मशहूर होया है उथे तिकर कैदो भी मशहूर होया है जिथों तिकर हीर पछाड़ी जाती है उथे तिकर कैदो भी मशहूर होया है जिथों मैयत पे पुछना नहीं पैंदा बहुत अच्छा शेर है। भरपूर तालियों में मोहतरमा अहमद जुनैद। क्योंकि ये माइक लगा हुआ था उनको सब कुछ सही तरह चल गया आपको नहीं चला काम हम अपने सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं सब कुछ ठीक है। अब हम आगे और हमारे दरमियान यहाँ इश्क और मोहब्बत की बातें ज़्यादा हुई कुछ तसव्वुफ की बातें भी शेयर करता हूँ चूँकि खुदा हमारा सब्जेक्ट है शायद हम इश्क करें न करें लेकिन हम किसी न किसी दौर में खुदा को ढूंढ थे और उसकी ज़ात को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उसी तलाश पे ये एक नज़म से मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि सुना है हर ज़ात में रहता खुदा है सुना है हर ज़ात में रहता खुदा है मैं हूँ कहाँ रहता खुदा है सुना है हर ज़ात में रहता खुदा है तो मैं हूँ कहाँ रहता खुदा है बहुत जानकार खुद में उसको ढूंढने के लिए यहाँ देखा वहाँ देखा कहाँ रहता खुदा बहुत जानकार खुद में
اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں دیکھا وہاں دیکھا، کہاں رہتا خدا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا نہ دیکھ ڈالا، اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا نہ دیکھ ڈالا، ماضی حال مستقبل دیکھا، کہاں رہتا خدا ہے، ہوں کس اضطراب میں، ہوں کس اضطراب میں، کیا ہوگا میرا، ہوں کس اضطراب میں، کیا ہوگا میرا، ہے یہیں کہیں مگر کہاں رہتا خدا ہے یہیں کہیں مگر رہتا کہاں خدا ہے، تم خدا نہیں، تم خدا نہیں، تم تو خدا نہیں، تم خدا نہیں، تم خدا نہیں، تم تو خدا نہیں، تھک گیا ہوں اسے ڈھونڈتے کہاں رہتا خدا، تھک گیا ہوں اسے ڈھونڈتے کہاں رہتا خدا ہے، سورج کو دیکھا چاند ستاروں کو بھی دیکھ، سورج کو دیکھا چاند ستاروں کو بھی دیکھ لیا، ہواؤں میں فضاؤں میں کہاں رہتا خدا ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں کہاں رہتا خدا ہے، سجدے میں جو بھی جتائی بھی تو کچھ نظر نہ آیا، سجدے میں جبیں جھکائی بھی تو کچھ نظر نہ آیا، سجدے میں نہیں تو کہاں رہتا خدا، سجدے میں نہیں تو کہاں رہتا خدا ہے، میں بھٹک رہا ہوں اس کی تلاش میں جنید، میں بھٹک رہا ہوں اس کی تلاش میں جنید، کبھی تو ملے گا ٹھکانہ جہاں رہتا خدا ہے، کبھی تو ملے گا ٹھکانہ جہاں رہتا خدا ہے۔ ایک چھوٹی سی اب غزل ہے، اس کے بعد مختصر پنجابی، ٹائم نہیں ہے اتنا، کدی تو بھی عشق کیتا ہی، کدی تو بھی عشق کیتا ہی، کدی زہر پیالہ پیتا ہی، کدی تو بھی عشق کیتا ہی، کدی زہر پیالہ پیتا ہی، کدی ہنجو بھی آئے نے اکھاں چ، کدی ہنجو بھی آئے نے اکھاں وچ، کدی ہجر دا پہنا کیتا ہی، درد بچھوڑے دا تو کی جانے، درد بچھوڑے دا تو کی جانے، تتی رے تے سفر کبھی تو کیتا ہی، اینا راواں وچ، اینا راواں وچ تو مر بیسی، اینا راواں وچ تو مر بیسی، کدی ہجر دا پہنا کیتا ہی، بھلا تو کی جانے اکھاں دا جادو، بھلا تو کی جانے اکھاں دا جادو، کدی درشن بردہ کیتا ہی، تو کی جانے اکھاں دا جادو، کدی درشن بردہ کیتا ہی، اے راواں اوکھیاں راواں نے، اے راواں اوکھیاں راواں نے، اینا راواں نے کدی کچھ دتا ہی، اینا زلفاں تے مر جاواں جنید، اینا زلفاں تے مر جاواں جنید، جنہاں سپنی وانگ ڈس دتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور آگے کچھ 4-5 شاعر مس ہو گئے، ادھر گواہ نہیں ہو گئے، تو ٹھیک ہے، میری گزارش ہے کہ جو مائک آئے یہاں پر تشریف لائے نا، یہ مائک کو اپنا ذرا مہمان سمجھے، کہ رہنا نہیں ہے، کہ کس نے نہیں رہنا، 4-5 اشعار کافی ہوتے ہیں، تو آصف خواجہ صاحب اتنا ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں جانا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ذرا پہلے پڑھا دیں، ان کا کام تو نہیں ہے، منظر خاطر حضرات میرے بڑے گہرے دوست، بہت اچھے دوست، بہت اچھے شاعر جناب آصف خواجہ، بہت سی تعریف۔
चिंता लाई चुप पहलो चिंता लाई चुप आपे फिर कुरलाई चुप आपे फिर कुरलाई चुप देंदी सी रुचनाई चुप शाम ने और बधाई चुप पहलो चिंता लाई चुप रोंदिया तोंदिया जागते जानते हाल दुहारी चुप पहलो चिंता लाई चुप जग तो चुप दा कारण पूछे अग्यो कुल खुदाई अग्यो कुल खुदाई चुप पंजा शेर की पाबंदी है, इस वास्ते आखिरी शेर सुना के चुप मेरे घर दा रौनक मेला मेरे घर दा रौनक मेला मैं मेरी तन्हाई चुप मेरी तन्हाई चुप पहलो चिंता लाई चुप आपे फिर कुरलाई चुप आसम खाजा साहब, क्योंकि मैं और आसम खाजा हम दोनों शरारती हैं, दोनों ही। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये जो ये कह रहे हैं ना कि मैं मेरी तन्हाई चुप, इनकी आंख में मैं शरारत देख रहा था। मैं कहा कहीं ये ना कह रहे मैं मेरी हमसाई चुप। जी अब देखो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर बोले दवाई चुप, और बड़ा कुछ हो सकता है। तो बारह इसको आगे बढ़ते हैं जी हमारे दरमियान बहुत, क्योंकि आज मामूली दिहाड़ है और इत्तेफाक से जो आ रहा है वो पंजाबी पढ़ रहा है। तो मैं जिस शायर को बुला रहा हूँ उनका ओढ़ना बिछोना पंजाबी है, बहुत खूबसूरत गहराई का कलाम पढ़ते हैं। फरियाद खाकी तशरीफ लाइएगा, बहुत सी तालियों में जनाब फरियाद खाकी। साबे सदर की इजाजत नाम सच दा दीवा बाल, सच दा दीवा बाल हनेरे हो गए ने, झूठ दे बदल चार चुफेरे हो गए ने। आओ रल मिल लबन चलिए, आओ रल मिल लबन चलिए सच, किधरे सारी धरती उत्ते खिलर न जावे कच्छ। अपनी पराई हर बुराई
ਲੋਕ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਵਾਂਗਰ ਮੰਡਾ ਬੰਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੀ ਉਮਰ ਰਹਿਜੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾਂ ਦੀ, ਭੋਲੀ ਉਮਰ ਰਹਿਜੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਈਮਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਸਨ, ਹਲਕਾ ਇੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਚੋਖੇ, ਭਾਈ ਬਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਚੋਖੇ, ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਨ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਸੱਜਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਨ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧੀਆਂ ਲਾਜਪਾਲ, ਧੀਆਂ ਲਾਜਪਾਲ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਲਾਜਪਾਲ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਠੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਗਿਆ, ਕਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੀਰੇ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਸਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਮੀ ਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਗਏ। जी फरियाद खाकी वाली अपना कलाम पेश कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद शफीक साहब आए हैं जी, खुश आमदीद इनको कहते हैं। मौलाना मोहम्मद आसफ साहब फरादीबा साहब तशरीफ रखती हैं, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। दिलशाद साहब तशरीफ रखते हैं, गुलजुमान नजर आ रहे हैं, और शुक्रिया जावेद इकबाल भाई भी तशरीफ रखते हैं, इमरान अरशद तशरीफ रखते हैं, इकबाल प्रकाशी तशरीफ रखते हैं। सबको खुश आमदीद। और आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमारे दरमियान में है जिन्हें जिन्हें अपना शौक पूरा करना है कर ले, क्योंकि आने लगे ने असलम शौक। ज़बरदस्त तालियां में बहुत अच्छे शायर, बहुत खूबसूरत कलाम के अंदर है, आप ज़बरदस्त तालियां दिमाग में इस्तेमाल करो कि असलम शौक। बहुत मेहरबानी। असी परदेसी किन्ने चले, वाह वाह। असी परदेसी बोलो बोलो। असी परदेसी किन्ने चले, रोंदे रहंदे बह के कल्ले। असी परदेसी किन्ने चले, रोंदे रहंदे बह के कल्ले। साडे यारो दुख अवले, खबरें होने कद सवले। असी परदेसी किन्ने 20 वरियां दी याद कमाई, खा गए सारी भैणा भाई। 20 वरियां दी याद कमाई, खा गए सारी भैणा भाई। तोहफे शोफे लैके मेथों करते रहे मेरी वडियाई। झूठी मेरी बल्ले बल्ले, कसमे रब दी कुछ नहीं बल्ले। असी परदेसी किन्ने चले। टेलीफोन ते अम्मा कहती मैं डाडे दुखड़े सहंदी, टेलीफोन ते अम्मा कहती मैं डाडे दुखड़े सहंदी। वोटी तेरी जीन न देंदी, खान न देंदी, पीन न देंदी। सानू कहती कर कर हल्ले, आजा पुत्रा वतना बल्ले। असी परदेसी किन्ने चले। साला पिछों घर नूं जाके पल दो पल बाद हसा के, साला पिछों घर नूं जाके पल दो पल बाद हसा के। आ जांदे फिर सब रवा के, निकी कहंदी गल टका के। अबू जी तुसीं कित्थे चले, सानू छड्ड के कलम कल्ले। असीं परदेसी किन्ने चले। कल तो बहुता अज स्यापा, कल तो बहुता अज स्यापा। बच्चे पाउंदे रोज कलापा, वीरां ताईं मौज करा के साडी वार क्यों होवे पापा। कल तो बहुता अज स्यापा, बच्चे पाउंदे रोज कलापा। वीरां ताईं मौज करा के साडी वार क्यों होवे पापा। बल्ले शौक जी बल्ले बल्ले, काका उत्ते पापा थले। असीं परदेसी किन्ने चले। जी जैसे असम शौक। और उसके बाद जो है वो हमारी एक शायरा है, माशाल्लाह पिछले साल भी उम्र अदा किया, इस साल भी उम्र अदा करके आई हैं। अब तो हम इनको हाजिर कहते हैं कि माशाल्लाह ये हाजिर नजमा शाहीन है। शीघ्र आइएगा अपना कलाम पेश करें, हाजिर नजमा शाहीन।
जनाब सदर की याद से एक आरज़ू हो ज़ख्मी, एक आरज़ू को ज़ख्मी करने से क्या मिला है, फिर भी मेरे लबों पर तेरे लिए दुआ है, एक आरज़ू को ज़ख्मी। जिस रोज भी मैं तेरा दीदार करने आई, जिस रोज भी मैं तेरा दीदार करने आई, गम और भी तो ज्यादा, गम और भी तो ज्यादा तूने मुझे दिया है, एक आरज़ू को ज़ख्मी करने से क्या मिला है। जिन रास्तों से गुजरे बाहम कदम मिलाकर, जिन रास्तों से गुजरे बाहम कदम मिलाकर, हर गुजर पे मैंने, हर गुजर पे मैंने सजदा अदा किया है, हर गुजर पे मैंने सजदा अदा किया है, एक आरज़ू को ज़ख्मी करने से क्या मिला है। शायद घर से गुजरे मेरी तलाश में वो, शायद घर से गुजरे मेरी तलाश में वो, लगता है मुझको ऐसे, लगता है मुझको ऐसे शायद वो आ गया है, लगता है मुझको ऐसे शायद वो आ गया है, एक आरज़ू को ज़ख्मी करने से क्या मिला है। कैसे बताऊं नजमा हम एक हो चुके हैं, कैसे बताऊं नजमा हम एक हो चुके हैं। मैं उससे कब जुदा हूँ, मैं उससे कब जुदा हूँ, वो मुझसे कब जुदा है, मैं उससे कब जुदा हूँ, वो मुझसे कब जुदा है, एक आरज़ू को ज़ख्मी करने से क्या मिला है, फिर भी मेरे लबों पर तेरे लिए दुआ है। ये थी नजमा शाहीन, आपके सामने अपना कलाम पेश कर रही थी। मुश्ताक अहमद साहब हमारे अगले शायर, आप सहाफ़ी भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं
اور آپ بہت متحرک ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ کی زبردست تعلیموں میں جناب مشتاق ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اج ماں-بولی کا تہوار ہے تے میں پیغام دوانا کہ اسی اپنے بالاں نال اپنے آل دوال مسجد والے نال اسی اپنی ترکیبی بولی نال گل کریے تاکہ یہ بڑھاوا مل سکے. تے ایک ہور گل جڑی میں سمجھا وا کہ اج سانو خوشی اس گل کی ہے کہ اسی اس شہر سے جناب جی پاس دانش ڈاکٹر دانش جیسے اور غلام حسین صادق جیسے اور سب تو بڑی گل میری خوشی کی گل ہے ایسی نظیر کیسے کہہ چلے گا. اور میرے بڑے بھائی جناب غلام حسین صادق نے جی گل کی اسی انہوں سیکٹ کرا گے کہ اس طرح کے جڑے ادارے جنہوں علمی ادبی اداروں کی جی سرپرستی دیتی گئی ہے اگر وہی اگر استحصال کریں گے سارے جی دانشور دوستوں کا تو پھر قوم جڑی کدھر جائے گی. میرے بڑا افسوس ہے اور اسی اس گل کی پرمی نندیا کر رہے ہیں کہ جی گل کی گئی ہے انہوں واپس لیا جائے. اور چند شیر کے گلی ڈنڈا کھیلنے والے کتنے گئے، گلی ڈنڈا کھیلنے والے کتنے گئے، بھائیاں ورگے یار پرانے کتنے گئے، گلی ڈنڈا کھیلنے والے کتنے گئے، بھائیاں ورگے یار پرانے کتنے گئے. کامی اج بدیرے آ کے بہن ڈالے، کامی اج بدیرے آ کے بہن ڈالے، بجری نال بلاون والے کتنے گئے. اور دو تین شعر وہ غزل کے پانچ تو علامہ نے پڑھا کہ اسل بٹے لیلا رات ہنگامہ میں، اسل بٹے لیلا رات ہنگامہ میں، تیرے نامے کنج حیاتی لاواں میں. اور شامہ ویلے سارے پنچھی پرت گئے، شامہ ویلے سارے پنچھی پرت گئے، تیریاں یاداں واجاں مار بلاواں میں، تیریاں یاداں واجاں مار بلاواں میں. اور کندھے لگے کئی کیلنڈر بدل گئے، کندھے لگے کئی کیلنڈر بدل گئے، 10 فٹ کنے پوتے مار بلاواں میں، 10 فٹ کنے 10 فٹ کنے پوتے مار بلاواں میں. اور جڑے جڑے لکن مٹی کھیلتے رہے جامن بھائی، جڑے جڑے لکن مٹی کھیلتے رہے، ایک ایک منظر رکھ چوں روز نامہ میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. جی محسوس کرتے ہیں ہمارے درمیان جو شاعرہ موجود ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں اسٹیٹ لائف میں وہ آفیسر ہیں، پھر ایک اکیڈمی بھی چلا رہی ہیں، اس میں انجمن نمانی کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے اسی مہینے ادبی بیٹھک میں آج ہمارا اس مہینے کا چوتھا پروگرام ہے. 4 فروری، 11 فروری، 17 فروری اور 21 فروری. اور اب انشاءاللہ 27 فروری کو علامہ 3 میں ہم بہت بڑے اداکار، لیجنڈ اداکار حبیب کی پہلی برسی ہم سیلیبریٹ کریں گے 4 بجے. اور پھر 5 مارچ کو ہم اسی ہال میں خالد نقاش کے ساتھ ایک شام منائیں گے. آج اس دن ان کی سالگرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے اچھی ٹیم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس اچھی ٹیم میں میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ شبنم مرزا میرا بڑا ساتھ دیتی ہیں. بہت سی تالیوں میں شبنم مرزا. آج
आज की शाम की खूबसूरत और हसीन बात यह है, नज़ीर कैसर साहब के लिए अदब वालों ने अदब के साथ हुकूमत पाकिस्तान तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके लिए मैं हमारा ग्रुप की बेहद मशहूर हूँ कि क्या आज उन्होंने खूबसूरत शाम मुनक़िद की और इस एहतजाज को जो है वहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की। शहजाद कैस बुखारी साहब तो बखूबी आगा है और सभी जानते हैं कि कायनात का फलसफा है, प्यार अंधा, मोहब्बत सियानी, इश्क पागल होता है। कैस शुक्र है कि तुम सियाने रहे। और सदर महफिल आपकी इजाजत से कि पहले तो अपनी जात की तकमील कीजिए, पहले तो अपनी जात की तकमील कीजिए, फिर अपने हस्ब और नस्ब पर तकरीर कीजिए। और सलीबों की कमी महसूस होगी तुमको शिद्दत से, सलीबों की कमी महसूस होगी तुमको शिद्दत से। वफा के शहर हम अहले जुनून इतने सजा देंगे। और एक मुख्तसर सी नज़्म के साथ कि मन मौसम बर्फानी है, मन मौसम बर्फानी है, आंखों में वीरानी है। मन मौसम बर्फानी है, आंखों में वीरानी है। तुम कहते हो बारिश है, मैं कहती हूँ पानी है। तुम कहते हो बारिश है, मैं कहती हूँ पानी है। कहता है ये दिल पगला, इश्कों की आसानी है। कहता है ये दिल पगला, इश्कों की आसानी है। मेरे भीगे काजल से पूछो, जो कुछ भी है फानी है। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा शबनम मिर्ज़ा अपना कलाम पेश कर रही थी और आपसे गुफ्तगू फरमा रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। स्टेज से पहले हमारे 4-5 कलाम है, उसके बाद स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज हमारे दरमियान इस शहर का एक खूबसूरत शायर अली सदफ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ। अली सदफ बड़ी गहराई की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बहुत सी तालीम में जनाब अली से। सारे शरत की मदद से दो शार। जिससे तड़पे रात भर तू वो सदा हो जाऊंगा, जिससे तड़पे रात भर तू वो सदा हो जाऊंगा। लो मैं अब तेरी तरह का बेवफा हो जाऊंगा। जाम साहब शेर देखिएगा कि बाद मेरे कत्ल पे रुसवा भी कर देना मुझे, बाद मेरे कत्ल पे रुसवा भी कर देना मुझे। मैं अना का बुत हूँ वरना फिर खड़ा हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाद मेरे कत्ल पे रुसवा भी कर देना मुझे, मैं अना का बुत हूँ वरना फिर खड़ा हो जाऊंगा। और एक शेर और कि मैं भी तो है दोस्तों कुछ कुछ मुनाफिक हो चला, मैं भी तो है दोस्तों कुछ कुछ मुनाफिक हो चला। गोया मैं भी आपके अब काम का हो जाऊंगा। और क्योंकि टाइम के हिसाब से बस 5 ही शायरी अच्छी तो ज़्यादा सुनी जा सकती। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। गजल के 2-3 शेर जी के हाथ आया सबूत तोड़ देता हूँ, हाथ आया सबूत तोड़ देता हूँ मैं, जब बहकने लगूं छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और कैसे भाई शेर सुनिएगा कि मेरे कमरे में रहती है एक बात का,
میرے کمرے میں رہتی ہے ایک فاختہ سو دریچہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں میں. اور اس سے پہلے کوئی چھوڑ جائے مجھے، اس سے پہلے کوئی چھوڑ جائے مجھے، اس سے پہلے اسے چھوڑ دیتا ہوں میں. ہوتا ہے کہ اشکوں میں لگا کر گرا خشکی، اشکوں میں لگا کر گرا خشکی، تم کہو تو صدف جوڑ دیتا ہوں میں، آدھایا سبو توڑ دیتا ہوں میں جب بہکنے